Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aquarius Ascendant and how the month of August 22 is going to pan out for the Aquarius Ascendant people. Both Aquarius Ascendant and Capricorn Ascendant are ruled by Saturn, and Saturn demands that these Ascendant people should work extremely hard in order to achieve something important in their life. The Aquarius Ascendant people usually have the habit of staying very shabby. They are not able to maintain themselves well in physical condition, and this does have an impact on their overall life. The Aquarius ascendant people should always try to keep themselves clean because Venus is the biggest benefic planet for them, and Venus demands them to live a very clean life. Therefore, taking care of your health as well as your body does immensely help Aquarius ascendant people in their routine life. They should also avoid wearing black or blue clothes because this dials up the negative influence of Saturn in their lifetime. Now, coming to the Saturn position in the month of August, Saturn is transitioning through the 12th house of expenditure, losses, and foreign travel. So, in the month of August, Aquarius ascendant people will feel alone, isolated, and the best way for them to overcome this situation would be to address the negative energies of the 12th house. 12th house denotes loss, hospitalization, etc. So, if you don't address the negative energies of the 12th house, then they try to express themselves in other ways. So people may get hospitalized or they may suffer a loss in the monetary terms. So the best way to deal is to get yourself involved in some not-for-profit institution, do some charity either with your time or with your efforts, and donate to charities or provide your services to the hospitals. If you're already working in a multinational company, or if you happen to be in a foreign country other than the place of birth, then this transit will be useful for you because then you would be addressing the negative energies of the 12th house via your connect with foreigners. Since the ascendant lord is in the 12th and Jupiter is also aspecting the 10th house of your action through its ninth aspect, there is a very high probability that you may get an opportunity to travel to a foreign country related to your work, or you may also get an opportunity to immigrate to a foreign country. So if you happen to get any such option, please do consider it seriously. That will turn out to be immensely beneficial for you in the longer run. Further, till 16th of August, Sun and Saturn are also in opposition with each other. Sun happens to be the Lord of Seventh for the Aquarius ascendant people. Therefore, these people will also see trouble on the marriage front. Seventh Lord going in sixth would mean negation of the marriage till 16th of August, because after that Sun will move in its own sign in the seventh house. They are advised not to get into arguments with their spouses or business partner, especially for the first 16 days of August. And when I say hospitalization, that could also happen because of the ill health of your spouse. The seventh lord going through the sixth house would mean the wife or husband may also face health issues during this time frame. So overall, it is not a very good month from the health perspective of your family itself. Let us also look at other planets one by one. Mercury is going to transition from seventh house in the month of August. This seventh house transition will continue till 20th of August, and after that, Mercury will move into the eighth. Since Mercury owns fifth house as well as eighth house, the fifth house lord transitioning through the eighth house would mean that you should avoid getting into speculation in the month of August, otherwise you will suffer lot of losses. Students will also have to work extremely hard in the month of August, especially in the last phase when Mercury moves into the 8th house from 21st August to 15th of October. Students will also find very difficult time. Let us also look at Jupiter. Jupiter is currently transitioning through the second house, and it is a very important planet for Aquarius ascendant people because it owns both the houses of gain, that is 11th house, and self-earned wealth, that is second house. Although Jupiter is migrating through the second house, but it is currently passing through the star of Saturn, which again happens to be in the 12th house. What it would mean is that you may also earn something from the foreign sources, or you may yourself receive some kind of a money from the charitable people or institutions. So again, from the financial perspective also, the month of August is not a great time to be in. Let us also look at Rahu and Ketu. Rahu is currently transitioning through the third house of efforts, and this is considered a very good position for Rahu.
because Rahu becomes very strong in third, sixth, and 11th house. Ketu is also transitioning through the ninth house. The best way to deal with this Ketu is to feed a black dog food on every Wednesday. This will take care of most of the malefic impacts of Ketu. Now, there are also certain dates in a month when a person needs to be very cautious, and although the month of August in itself is quite difficult for Aquarius ascendant people, the days where they need to be extremely careful are 2nd and 3rd of August, 11th and 12th of August, 24th to 26th of August, and 29th to 30th of August. So these are the days when Aquarius ascendant people needs to be very cautious and they should avoid taking any big decisions. Overall, this is a month to tolerate for Aquarius ascendant people. Their situation is certainly going to improve once Venus also makes its transit into the seventh house along with Sun, and then we will see the eventual easing of situation since Saturn will start going back again in the Aquarius sign and will come back to the first house from January 23 onwards. But month of August is going to remain challenging for the Aquarius ascendant people since Jupiter is aspecting their 10th house and Mars is also going to aspect its own house, the challenges would amplify on the work front, but they will still continue to maintain their jobs or business. So, this is the overall summary for Aquarius Ascendant people. Please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसे होगा। देखिए, मकर और कुंभ लग्न के लोगों का स्वामी शनि होता है और शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है। इसलिए अगर आप कुंभ और मकर लग्न वाले लोगों को देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लग्नों में आते हैं और जब तक इन लग्नों में पैदा हुआ व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता तब तक उसको जीवन में कुछ खास अचीव करने को नहीं मिलता। इसलिए आप बहुत से मकर और कुंभ लग्न के लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ पाएंगे कंपेयर टू बाकी सारे लग्नों के। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कुंभ लग्न के लोग होते हैं ये काफ़ी मैले कुचेले रहते हैं और ये अपने रोज़ नहाते भी नहीं हैं या फिर इनकी जो पर्सनल हैबिट्स होती हैं वो बहुत आलसी सम टाइप की होती हैं। कपड़े भी ये काले या नीले रंग के पहन के घूमते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से अपने शनि को और ज़्यादा बलवान करते जाते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह होता है, इसलिए अगर ये रोज़ साफ सफाई का ख्याल रखें स्वयं के शरीर की और अपने घर में जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी अपने कमरे और आसपास की, तो इन लोगों को काफ़ी लाभ होता है अपनी पर्सनल लाइफ में। इनको हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इससे उनके शनि की नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा बलवान होती है। अभी अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो लग्न स्थान के मालिक शनि 12वें भाव से गुजर रहे हैं। तो 12वें भाव से जाना लग्नेश का माने व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। उसको काफ़ी ऐसी फीलिंग आती है कि उसके साथ कोई और है नहीं और ये फीलिंग तब तक बरकरार रहती है जब तक लग्नेश 12वें भाव से निकल नहीं जाता। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा को एड्रेस करने का है कि आप 12वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ें कीजिए, यानी आप तो चैरिटी में इन्वॉल्व हो जाइए क्योंकि वो भी 12वें भाव से दिखाई जाती है, या फिर आप दान पुण्य का कार्य कीजिए, हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दीजिए या वहाँ पर अपना पैसा दान कीजिए क्योंकि 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखता है। अगर आप कहीं एमएनसी में कार्यरत हैं और आप कहीं फॉरेनर्स के साथ डील करते हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि 12वें भाव से आप फॉरेनर्स को भी देखते हैं। तो इस तरह की स्थिति में 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेना सबसे बेहतर रहता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब तो आपका महीना काफ़ी हद तक ठीक गुजरेगा, नहीं तो अगर आप इन एनर्जीज को डिसिपेट नहीं कर पाते तो फिर ये लौट के आती हैं। तो फिर लग्नेश का 12वें में जाना यानी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है या फाइनेंशियली अपना कोई नुकसान कर बैठता है क्योंकि इससे आप लॉस भी देखते हैं। एक और तरीका ऐसा भी होता है कि व्यक्ति छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करे क्योंकि 12वें भाव से आप छोटे तरह के इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। तो आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं नेगेटिव एनर्जीज को, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो अगस्त के महीने में तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने से आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। दूसरी स्थिति कुंभ लग्न वालों के लिए अगस्त में जो कुछ खास अच्छी नहीं बन रही वो ये है कि सूर्य और शनि की प्रतियुति हो रही है। सूर्य और शनि आपस में कट्टर दुश्मन है, सूर्य पिता है शनि पुत्र है, तो इनकी आपस में वैसे ही नहीं बनती। ऊपर से सूर्य कुंभ लग्न वालों के लिए सप्तम भाव का यानी कि आपके पति पत्नी का या अपनी शादी का स्वामी होता है, तो वो भी छठवें भाव से गुजर रहा है यानी कि 7वें से 12वां, 7वें का निगेशन हो रहा है। तो पति पत्नी के साथ विवाद और काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति अगस्त में आपकी बनी रहेगी, खास करके 16 अगस्त तक जब तक सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद भी जब सूर्य निकल के यहाँ पर स्वयं की राशि में आ जाएगा
तो स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होगा। लेकिन लग्नेश का ही 12वें भाव से जाना आपके लिए खेल खराब कर रहा है अगस्त के महीने में। तो सावधान रहिए, क्योंकि आप हॉस्पिटलाइजेशन आपका नहीं हुआ तो हो सकता है आपकी पति या पत्नी का हो जाए, क्योंकि यहाँ से 7वें भाव से आपके पति या पत्नी देखे जाते हैं, उससे 12वें में भ्रमण यानी कि पति या पत्नी की भी सेहत में खराब होना देखा जा सकता है अगस्त के महीने में। तो 16 अगस्त तक का समय तो काफ़ी तनावपूर्ण है कुंभ लग्न वालों के लिए। यहाँ से अगर आप एक बार निकल जाते हैं तो देखिए 20 अगस्त के बाद बुध, जो कि 20 अगस्त तक यहीं 7वें भाव में बैठे रहेंगे, वो 8वें भाव में स्थानांतरण कर जाएंगे। बुध पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो पंचम भाव का 8वें भाव में जाना यानी 20 अगस्त के बाद जितने भी विद्यार्थी हैं या शेयर बाजार से में खेलने वाले लोग हैं, या फिर आप क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट, पेंटर्स, कल्चर्स, ऐसे लोग हैं, या 5वें भाव से जुड़ा हुआ और कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग या फिर एजुकेशन से रिलेटेड लोग, उनके लिए भी कुछ खास समय अच्छा नहीं रहेगा जब तक कि बुध यहाँ से भी नहीं निकल जाता, और ये यहाँ पे 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक जमा रहेगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत चैलेंजिंग महीना होगा कुंभ लग्न वालों के लिए। एक नज़र गुरु पे भी डालते हैं। देखिए, गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ नवी दृष्टि से कर्म स्थान पे डाल रहा है, तो कर्म स्थान को तो प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इसी समय ये जो प्रतियुति बन रही है शनि सूर्य की, ये फिर 6वें भाव में बन रही है, तो जितने भी लोग जॉब करते हैं कुंभ लग्न के, उनके लिए जॉब में भी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि 6वें भाव पर भी पड़ रही है और 10वें भाव पर भी पड़ रही है, तो आपकी नौकरी जाने का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन तनाव बना रहेगा नौकरी में। अगर आप नौकरी करते हैं तो बिजनेस है, तो उसमें भी स्थिति 16 अगस्त तक तो अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सप्तमेश 6वें में है। लेकिन 16 अगस्त के बाद बिजनेस में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। जॉब वालों के लिए गुरु स्थिति बिल्कुल बदतर नहीं होने देगा, क्योंकि ये दोनों ही दृष्टि एक 6वें भाव पे एक 10वें भाव पे पड़ेगी, तो आपकी जॉब जाएगी नहीं, लेकिन स्ट्रेस बहुत बना रहेगा। राहु तृतीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। राहु की तृतीय भाव में स्थिति बहुत अच्छी कही जाती है, क्योंकि राहु 3, 6 और 11 में बहुत बलवान, उत्तरोत्तर बलवान होता चला जाता है। तो तीसरे भाव का राहु पोजीशन अच्छी कर रहा है कुंडली में। लेकिन 9वें भाव के केतु की तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए आपको हर बुधवार को काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है केतु की खराब ऊर्जाओं को एड्रेस करने के लिए। मंगल भी अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देखेगा, और ये उसका स्वयं का स्थान है। तो जब भी किसी भी भाव का स्वामी स्वयं ही अपने भाव को देखता है, तो उस भाव को भी मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पर एक बार जब शुक्र और सूर्य 6वें भाव से निकल जाएंगे तो आपकी स्थिति में डेफिनेटली सुधार होगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा शनि का ही है, क्योंकि लग्नेश का 12वें भाव से जाना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं कहा जाता। गुरु द्वितीय भाव से गुजर रहा है। गुरु एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंभ लग्न वालों के लिए, क्योंकि ये द्वितीय और 11वें दोनों भाव का स्वामी होता है, और दोनों ही भाव धन से जुड़े हुए हैं। 11वें भाव से आप किसी भी तरह का लाभ देखते हैं, द्वितीय भाव से आप स्व अर्जित धन और अपने परिवार को देखते हैं। तो गुरु हालांकि अपनी राशि से भ्रमण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो शनि के नक्षत्र से गुजर रहा है, तो नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट वो पहले देगा। तो यहाँ पे 12वें भाव से जुड़े हुए रिजल्ट फिर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए धन के लिहाज से भी अगस्त का महीना आपके लिए चैलेंजिंग ही होगा। तो ओवरऑल आप अगर आप देखेंगे तो कुंभ लग्न वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय तो है। तो आपको स्ट्रेस से बचने के लिए 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा को इस्तेमाल में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये महीना बहुत मुश्किल साबित होगा कुंभ लग्न वालों के लिए। तो ये आपका ओवरऑल समरी था एक्वेरियस असेंडेंट का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।